ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਡੈਲਚ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2016 ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਥਸ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ 10 ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, 5 2D ਤੇ ਔਰ 5 3D ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 1 5 5 9 7 11 11 15 12 और 70। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 4 ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਡ ਮਾਨੇ ਕਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਔਰ ਈਵਨ ਮਾਨੇ ਜੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਡ ਟਰਮਸ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਹੈ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਤੇ 5 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ 5 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 7 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 9 11 5 9 11 ਐਂਡ 15 ਔਰ 17। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 4 ਦਾ, 2 ਦਾ, 4 ਦਾ ਔਰ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਵਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ 4 2 ਔਰ 4 2 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ 4 2 ਔਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ 12 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 13 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ 12 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 12, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ 12 ਹੈ, ਇੱਥੇ 12 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 13 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ Z1A ਤੇ X2D ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ V6G ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, T21J ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, R88M ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ P445P ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ Z X V T R ਔਰ P। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Y ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, X ਤੋਂ ਬਾਅਦ V W X ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, T U ਫਿਰ 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, R S यानी कि फिर 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, PQR ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, N हो सकती है, क्योंकि इतने O आएगा, 1 ਦਾ ਫਾਸਲਾ है, तो यानी कि
n ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਉਹ ਸਟਾਰਟ n ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ A ਔਰ B ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ P ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, A ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ D ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ B C 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। D ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਔਰ F, ਫਿਰ G 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। G ਤੋਂ ਬਾਅਦ H I J K L M N O P, ਯਾਨੀ ਕਿ Q R ਔਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ S, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਮ S ਤੋਂ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ S ਤੋਂ ਐਂਡ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ A। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 32nd ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ 31st ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਡ 1 ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਓਡ 1 ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਿੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਜ਼ਰ ਹੈ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਡ੍ਰੌਪਰ ਹੋਵੇ, ਸਟ੍ਰੋ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ 4 ਗਰੁੱਪਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ 1 ਚੱਕੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, A D B E C, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ F I G J ਤੇ H, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ K N L O M, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ P R T S Q। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਡ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ A B C D ਔਰ E, ਐਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ A B C D E F G H I J K L M N O, यानी कि 1 3rd 5th फिर 2nd और 4th इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ P Q R S T, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਓਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 35th ਔਰ 36th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ 2 ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਔਰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ 2 ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 35th ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਸਮੀਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਮੋਨਿਕਾਜ਼ ਫਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਮੀਰ ਐਂਡ ਅਜੇ ਆਰ ਸਨਸ ਆਫ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐਂਡ ਮੋਨਿਕਾ, ਕਿ ਸਮੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਮੋਨਿਕਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਮੀਰ ਮੋਨਿਕਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਮੀਰ ਮੋਨਿਕਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਦਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਫਾਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਤਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣ।
इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਮਿਸਿਸ ਰੋਏ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਮਿਸਿਸ ਰੋਏ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਰੋਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮਿਸਿਸ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। देखो मिसेस रॉय कितने ने। हाउ इज मिसेस रॉय रिलेटेड टू आशीष। देखो सब तो पहला आशीष मोनिका नाल विआह होया है, ठीक है जी। और देखो सैकेंड लाइन फर्स्ट लाइन दे विच लिखा है कि आशीष मैरिड मोनिका। आशीष मोनिका नाल मैरिज करदा है। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर रॉय। जिहड़ी मोनिका है वो एल्डेस्ट डॉटर है मिसेस एंड मिस्टर रॉय दी। मिसेस रॉय दी डॉटर है कौन? मोनिका। तो आशीष मिसेस रॉय नाल किवें रिलेटेड होया? सासू मां यानी कि मदर इन लॉ। सो 36 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन साडे कोल आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पूरे का पूरा पैरा पढ़न की लोड़ नहीं हुंदी। मैं फिर इत्थे रिपीट कर रहा, पूरे का पूरा पैरा पढ़न की लोड़ जिहड़ी वो नहीं हुंदी। नैक्सट असीं देखते हैं जी क्वेश्चन 37th और 38th दोनों रिलेटेड ने। उहदे लिए स्टेटमेंट दी हुई है कि 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर, कि 6 फ्लैट ने जी एक फ्लोर के ऊपर। एक फ्लोर है जिहदे ते 6 फ्लैट्स ने, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। मतलब कुछ का फेस जिहड़ा नॉर्थ वन्नी है तो कुछ का साउथ वन्नी है, ये कह सकते हैं असीं। मतलब मान लो ये प्रॉपर एक कोई फ्लोर है तो ये विचों दी जा रहा और इस तरीके नाल 3 फ्लैट इधर बने हुए सी और 3 इधर बने हुए ने और उन्होंने गेट आमो सामने कह सकते हैं। इस तरीके नाल दा भी असीं अंदाजा जिहड़ा लगा सकते हैं, ठीक है जी। सो 6 ने और 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 rows फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ आर अलॉटेड एज PQRSTU। मतलब नॉर्थ और साउथ च हैगे ने और 6 फ्लैट ने टोटल। सो असीं की करते हाँ, 3 फ्लैट्स नॉर्थ वन्नी और 3 फ्लैट्स साउथ वन्नी। सो ए जो हो गया साउथ ते ए जिहड़ा हो गया नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा वाल नॉर्थ ते हो गया साउथ, ठीक है जी। ये चीज हो गई टोटली। एंड नेक्स्ट वन कहते हैं क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग। क्यू जी जिहड़ी है नॉर्थ फेसिंग है, क्यू जिहड़ा है नॉर्थ वाले पासे है एंड इट इज नॉट नेक्स्ट टू एक्स। एस दे नेक्स्ट नहीं हैगा। यानी कि अगर तुसी क्यू नू इत्थे लिखिया तो यानी कि एस ने इत्थे या इत्थे, मतलब एस तो नेक्स्ट हुण एस इत्थे भी हो सकदा सी ते एस इत्थे भी हो सकदा है, ठीक है जी। इहदा मतलब अगर मैं क्यू नू सेंटर च रखिया तो हमेशा इधर वाले नंबर तो भी नेक्स्ट होएगा और इधर वाले तो भी नेक्स्ट होएगा। यानी कि क्यू सेंटर च नहीं हैगा, ये उन्हें श्योर करता, ये उसने श्योर करता। यानी कि क्यू नू या तो असीं इत्थे लै सकदे हां, यानी कि क्यू नॉर्थ फेसिंग दा है पर एस तो अगे नहीं आएगा, मतलब एस तो नेक्स्ट ओ नहीं हैगा। तो इधर तो नेक्स्ट कुछ है ही नहीं वैसे भी, तो क्यों असीं इस नुक्कड़ ते रख सकते हैं या उस नुक्कड़ ते। सो मैं 2 डायग्राम इत्थे लैके चलांगा, क्यों इस नुक्कड़ ते भी हो सकता है या क्यों इत्थे भी हो सकता है, ठीक है जी। ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है। नैक्सट आप देखते हैं एस एंड यू गेट डायगनली ओपोजिट कोरनल फ्लैट्स। एस ते जिहड़े यू ने वो डायगनली ओपोजिट ने, मतलब अगर मैं एस इत्थे लिखिया है तो यू इत्थे लेना पड़ेगा और अगर मैं एस इत्थे लिखा है तो मैंने यू इत्थे लेना पड़ेगा, ठीक है जी। और एस उन्हें पहला ही दसता सीगा कि एस ऊपर आना है, तो इस करके मैं एस और यू ने इदा लिता है। तुसीं इदा कह सकते हो कि एस ते यू एस इत्थे क्यों नहीं लिता। उन्हें कहा क्यू एस दे नेक्स्ट नहीं है, दैट मीनस वो पहले ही उसने हिंट देता कि एस नॉर्थ च ही है, ये भी क्लीयर हो गया सी उत्थे ही। उस तो बाद है जी आर नेक्स्ट टू यू। आर जिहड़ा यू तो नेक्स्ट है, यानी कि इत्थे आ जाएगा और इत्थे हो जाएगा। आर इज नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, वो तो ऑब्वियस है जी, साउथ फेसिंग फ्लैट चाहिए वो। एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, टी नॉर्थ च है यानी कि टी इत्थे हो गया और टी इत्थे फिक्स हो गया। सो की कुछ सीगा पी के ओवर एस टी यू, यानी कि पी इत्थे आ जाएगा और पी इत्थे आ जाएगा। सो ये डायग्राम कंप्लीट है साडे कोल, या तो इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का, ठीक है जी। हुण उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सानू देखना पएगा कि एक्चुअल च की क्वेश्चन पूछ रहे हो। असं दोनों पॉसिबिलिटीज बना ली क्या पॉसिबिलिटीज है डायग्राम दी। हुण पूछ रहा जी इफ फ्लैट ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज, अगर टी ते पी इंटरचेंज हो जान, आ रहा टी ते आ रहा पी, अगर वो कहते इन्होंने मैं इंटरचेंज करदा तो यू तो नेक्स्ट फ्लैट किहड़ा होएगा। अगर टी ते पी इंटरचेंज होंदे तो यू दे नेक्स्ट फिर भी आर ही रहा है, इत्थे भी अगर मैं टी और पी नूं इंटरचेंज करदा तो यू तो बाद आर ही रहा है। सो आंसर उहदा आर ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जिहड़ा है वो 37 का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਫਲੈਟ ਲਾਈਕ ਐਸ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਔਰ ਯੂ ਕੋਰਨਰ ਫਲੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗੋਨਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸ ਔਰ ਯੂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿਊ ਔਰ ਪੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਊ ਔਰ ਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊ ਔਰ ਪੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ 38th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि दोनों ही डायग्राम के अकॉर्डिंगली आंसर हो गया, बट पेपर च दोनों पॉसिबल ही डायग्राम बना के देखा करो, इको डायग्राम के अकॉर्डिंगली तुसी अपना आंसर जो ना लगाया करो। हाँ जी, तुहाडी स्क्रीन के उपर 39th क्वेश्चन जो आ चुके हैं। 39th क्वेश्चन तुसी जरूर देखो अपनी स्क्रीन के उपर। 39th क्वेश्चन तुसी पढ़ो, स्टेटमेंट देखो कि द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लैटर, तो लैटर सानू जो दिता है वो लैटर है वंडरफुल। इत्थे जो लैटर है साडे कोल लैटर है वंडरफुल, ते असीं इहदी रकम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वंडरफुल की लिखा जी इन्होंने कि द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लैटर्स इन द वर्ड वंडरफुल विल रिमेन अनचेंज, कि बदलेगी नहीं। मतलब वंडरफुल वर्ड दे विच या वंडरलैंड वंडरफुल लिखा वंडरफुल, कि वंडरफुल वर्ड दे किन्ने वर्ड्स की जिहड़ी है वो अरेंजमेंट नहीं चेंज होएगी अगर असीं उन्हां नूं अल्फाबैटिकली अरेंज कर देने हैं। ठीक है जी, अल्फाबैटिकली अरेंज करना है। देखो समझो WONDERFU ते L ये ना जी वंडरफुल। सो आ है, पर असी इसनूं अल्फाबैटिकली अरेंज करना है, अल्फाबैटिकली यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग ही। सो देखो D तो फिर E फिर F, उस तो बाद की हो जाएगा जी GHIJKLMNOPQRSTU VW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि पूरे हो गए जी। सो किन्ने की चेंज नहीं हुई, आ 9वें पोजीशन ते 8वें पोजीशन ते बैठे, बाकी होर कोई भी पोजीशन जी मैच नहीं हुआ, कोई भी वर्ड मैच नहीं होया अल्फाबैटिकली अरेंज करने तो बाद भी सिर्फ एक वर्ड ही मैच होया है। इहदे विच भी 8वें नंबर ते सी और अल्फाबैटिकली भी 8वें ते ही आ रहा है इस वर्ड दे विच। सो यानी कि एक ही वर्ड है जिहड़ा अनचेंज नहीं होया उहदी पोजीशन। ठीक है जी, सो ऑप्शन जिहड़ी साडी बन गई इहदी बी ऑप्शन जिहड़ा 1 आंसर है वो तुहाडा जिहड़ा आंसर हो गया इहदे विच। क्लीयर है जी, बड़ा ईजी जा क्वेश्चन है। नैक्सट स्टेटमेंट तुसीं देखो, नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के ऊपर। नैक्सट क्वेश्चन है जी कि इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज ईच लेटर गेट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। मतलब जिवें इहदे विच MKKIDENTT जो भी दिता होया है MKD, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी एवें गिनना है तुसीं, पहला दूजा तीजा इस तरीके नाल है। और वो कहंदे ने, मैं तो लिख ही लेना जी प्रॉपरली सारा ताकि क्वेश्चन करने तुहानूं कोई दिक्कत ना ही आवे। MKKIDETTQOBFHAAGTUU XWLSR ते I। ठीक है जी, ये सारा मैं लिख लिया। सो हुण कहते गिनती तुसीं एवें करनी है 1 2 3 4, यानी कि K की पोजीशन 2 है, K की फिर जिहड़ी 3 है, इस तरीके नाल तुसीं जिहड़ा काउंट करना है। ठीक है जी, 2 for K एंड 4 for I। ठीक है जी, 4 for I। सो इस तरीके नाल जिहड़ा है तुसीं इसनूं ऐड करते जाना है। सो कहते द सम ऑफ लैटर्स ऑफ OB लैटर दे इन्हां नूं सम करना है पहला तां। सो OB तुसीं जिहड़ा देखोगे वो इत्थे कितने नंबर ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो O है 11 ते B है 12वें ते। सो टोटल आ गया जी 23। उन्हें कहा सी OB दे लैटर्स का सम करो, वो एग्जैक्टली किहदे इक्वल आउंदा है। सो 12 और 11 है 23। सो टोटल गिन लो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 L ते जाके पूरा होंदा, यानी कि OB दा सम L दे इक्वल आ रहा है। O प्लस B लैटर दा सम L दे इक्वल आ रहा है। आही उन्हें जिहड़ा सानू क्वेश्चन पूछा सी। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ी है D 40 दा जिहड़ा आंसर हो जाएगी। क्लियर है जी, बड़ा ईजी क्लियर कट क्वेश्चन है साडे कोल। सो
देखते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन आप अपना नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है आप इत्थे छाती मारते हैं। तुसीं देखो जी नैक्सट क्वेश्चन कि इन अ क्यू कि एक लाइन दे विच क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ो जी कि एक लाइन दे विच शेखर जिहड़ा है 9वें नंबर ते खड़ा है पिछले पासियों 9th फ्रॉम द बैक पिछले पासियों 9वें नंबर ते खड़ा है ते अरुण जिहड़ा है वो 8वें नंबर ते खड़ा है शुरू वाले पासियों ते अरुण जिहड़ा है वो शुरू वाले पासियों 8वें नंबर ते खड़ा है। क्लीयर है जी। ते निखिल जिहड़ा है वो उन्हां दोनों दे विचाले खड़ा है। सो घट्टो घट नंबर दसो भी किन्ने लोग उस क्यू च खड़े सी। देखो ऑप्शंस है 14 12 10 और 9 यानी कि असीं घट्टो घट सब तो पहला असीं 9 मान के चल पई कि 9 ही बंदे लाइन च लगे हुए सी। सो असीं मान लो इस तरीके नाल एक लाइन लगाई आ लाइन दा अग विंडो है किसी विंडो के उपर खड़े ने 9 जाने मान लिया असीं 9 हैगे है। हुण की हुंदा है कि मान लो उसने कहा सी कि जिहड़ा शिखर है वो पिछों तो 9वें नंबर ते खड़ा है यानी कि वो इसका मतलब इत्थे पहले नंबर ते खड़ा है। ठीक है जी। फिर कहते जी अरुण जिहड़ा है पहले तो 8वें नंबर ते खड़ा फ्रंट तो यानी कि 8वें नंबर ते वो इत्थे खड़ा है। ठीक है जी। टोटली 9 जाने सी तो 8वें ते खड़ा पर वो कहते जी जिहड़ा निखिल है वो इन्हां दोनों दे विचाले खड़ा है। इन्हां दोनों का विचाला कट्टण का फार्मूला हुंदा है 1 + 8/2 मतलब सेंटर आ जाएगा यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। हुण बंदे तो वड्डे जा नहीं सकते 4.5 नहीं हो सकता यानी कि असीं मिनीमम 9 की जगह ते असीं 10 बंदे लैके चल पैंदे हां। मतलब असीं मान के चलते कि टोटल 10 बंदे सीगे और असीं दोबारा सारी स्टेटमेंट ते जाने क्योंकि कहते शिखर 9th फ्रॉम द बैक ਇਹਦਾ मतलब शिखर दूजे नंबर ते खड़ा है तो उनके लिए तो सेम है अरुण 8वें नंबर ते खड़ा है यानी कि वो 8वें ते खड़ा है इतने कोई 9वीं पोजीशन है सानू नहीं पता है ना। यानी कि इन्होंने दोनों के विचाले हुण असीं चैक करके देखते हैं 2 + 8/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वें नंबर ते एक बंदा खड़ सकता है। इत्थे ऑप्शन हैगी है। सो दैट मीनस घट्टो घट 10 बंदे हैगे उस लाइन दे विच 9 नहीं हो सकते मिनीमम कन्फर्म है। सो 41 का जिहड़ा ऑप्शन है वो सी जिहड़ा आंसर हो जाएगा। सो कुछ क्वेश्चंस इन जनरली तुसीं भी सॉल्व कर सकते हो विद दिस काइंड ऑफ मैथड्स। ठीक है जी। सो दिस काइंड ऑफ मैथड्स असी चीज़ों नूं बड़े आराम नाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं सानू पेपर च कोई फॉर्मूला तुहानूं शायद ही किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करन देवां मतलब बड़े घट चांस रहते कि मैं यूज़ करा फॉर्मूलाज नूं। द सैकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे। नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो सैकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे है जी। ठीक है जी। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नैक्सट मंथ विच इज 31 डेज कि अगले महीने की 31 तरीक नूं जी किहड़ा दिन आएगा। देखो तुसीं सिंपल जी चीज़ समझो किसी महीने की एक कोई तरीक नूं कह दे जी इन्ना आ वार है और सानू पूछे अगले महीने की इस तरीक नूं की वार होगा तो असीं नहीं दस सकते क्योंकि सानू दसना पेगा उसनूं कि वो महीना 30 का सी 31 का सी 28 का सी कि 29 का सी सानू दसना पेगा उसनूं। उन्हें आ तो दस्या नहीं तो असीं अगले महीने ते किवें पहुंच सकते हैं। ये 4 दिनों के करके बड़े दिन बदल जाएंगे दैट मीनस उसका जो डाटा है वही पूरा नहीं दिता होया उसने क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। यानी कि 42 का सीधा सीधा ऑप्शन डी है डाटा इनएडिक्वेट कि डाटा ही जो है उसने पूरा सानू जो है वो नहीं दिता। क्लीयर है जी। ईजी जा क्वेश्चन सीगा कुछ भी नहीं सी क्वेश्चन। नैक्सट 43 क्वेश्चन देखो तुसीं 43rd क्वेश्चन जो है गोले मार के उसने दिता होया है 8 6 इत्थे 2 और 6 इत्थे उसने लिखता 36 है ना। फिर एक और गोला दिता है उत्थे लिखा है 7 8 2 और 5 सॉरी 46 है और इत्थे एक गोला है इत्थे एक्स क्वेश्चन मार्क बनाता उन्हें 7 10 6 और सॉरी 4 है और 6 है इस तरीके नाल है ना सारा। सो कहता जी किवें आएगा सब तो पहला असीं देखना है कि ये किस तरीके नाल सॉल्व हैगे ने तां ही असीं उसनूं लगा सकते हैं। सो देखो जी उसने इन्हां दोनों की गुणा की माइनस आ करता 8 6 48 माइनस 6 दूनी 12 सो आंसर आ गया 36। इन्हां दोनों की गुणा माइनस इन्हां दी 7 8 56 माइनस 5 दूनी 10 सो आंसर आ गया 46। हुण इत्थे की होएगा 70 माइनस 24 सो आंसर आ जाएगा जी 46। सो इत्थे आ जाएगा जी सॉरी एक मिनट 70 माइनस 24 70 माइनस 24 ठीक है जी 46 ठीक है जी वही आ जाएगा 46 ही आएगा सॉरी 46 ही है आंसर। सो इसका भी आंसर 46 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जी है साडा आंसर हो जाएगी।
उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਹੈ A2 C4 E6 G3 15 I5 M5 O9 Q14। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नु किस तरीके नाल हो पा रहा है। सो देखो उसने की किया है A2 C4 E6 G3 I5 इतने क्वेश्चन मार्क लगाता उसने M5 और O9 और Q14 इस तरीके नाल उसने बड़ा कुछ लगाया हुआ है। सो इतने जी चीज तुसी समझनी है वो की है ए तो बाद B C D E F G H I J यानी कि इतने पहला तक के एक कन्फर्म है इस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। और सैकेंड इतने की है 2 और 4 6 होंगे, 5 और 9 14 होंगे, यानी कि इतने 3 और 5 8 हो जाएगा, यानी कि K × 8 डायरैक्ट आंसर जोड़ा वो आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर B जी है वो इसका आंसर है। बड़ा ईजी इन्हों सोचने के तरीके होंगे, तुम प्रॉपर जनरलाइज कराया करो कि चीज़ां किवें हो सकती किवें वो ऐड किवें सबट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है जी, मैं इसनूं करता नहीं मिटाउंदा नहीं। 45th क्वेश्चन असीं देखते हैं। वो कहते जी 3 ऑफ द 4 आर अलाइक। वो कहते जी 4 चीज़ां चों 3 जिहड़े ने अलाइक, अलाइक माने सेम, सेम हैगे ने ते ग्रुप्स च वंडते हो ते तुसीं दसो जी ये 4 ऑप्शनां चों किहड़ा जिहड़ा है उस ग्रुप च नहीं होऊगा। यानी कि इस ग्रुप चों ये चैक करना है कि ਇਹ जे किहड़े है जिहड़े 3 इक्को जे हैगे है, ਉਹਦੇ अंदर कोई 3 चीज़ें जी इक्को जी नज़र आ रही हैं। पहली ऑप्शन 125 है, फिर 525 है, फिर 729 है, फिर 216 है। देखो एक चीज़ 125 बनता 5 × 5 × 5, 729 बनता 7 × 7 × 7 नहीं 9 × 9 × 9 और 216 बनता 6 × 6 × 6। 525 किसी नाल नहीं बनता, यानी कि इन्हां दे अंदर 3 बंदे सेम हैगे ने पर ये कोई सेम नहीं है, यानी कि 525 जिहड़ा है एक डिफरेंट आइडिया सीगा, वो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा। सो सिंपल जा क्वेश्चन सीगा। नैक्सट में थे 46th इमेज बनी हुई है जी। उसने पूछा है कि इन्हां विचों तुसीं दसो किहड़ी चीज़ मतलब उहदे नाल होएगी। मैं इत्थे तुहानूं दस देना चाहुंदा क्वेश्चन किस टाइप का है। ये क्वेश्चन सीगा जी उहदा, इत्थे 3 डंडियां सी और उसने ट्रैंगल बनाती, यानी कि 3 साइड 3 ट्रैंगल बना ली उसने, है ना। तुसी ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन तो उसने की किया आ दे के और इतने चौरस डब्बा बना लिया, यानी कि 3 साइडों तो 4 वाला नहीं बन सकता, खत्म। दूसरे च गया वो, दूसरे जो उन्हें की किया इतने 4 बना लिया और इतने बनाती ट्रैंगल। सो यानी कि ये भी नहीं हो सकती 4 साइडा ने 3 यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है। लास्ट तुसी देखो, लास्ट च उसने की किया इतने 3 बनाइया और इतने बनाती हो डी ऑप्शन, वो भी गलत है। पर तुसी वो देखो जी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन च उसने 5 बनाइया और नाल उसने इस तरीके ਨਾਲ 5 वाला यूज किया है, यानी कि सी ऑप्शन जिहड़ा है वो साडा आंसर हो जाएगी। क्लीयर है जी, बड़ा ईजी सिंपल जा क्वेश्चन सी ये, और जरूर समझो इन्हां चीज़ां नूं, बड़ियां ईजी चीज़ां ने। ठीक है जी, क्लीयर है जी। नैक्सट देखो तुसी इस फिगर नूं, और फिगर च पूछ रहे हैं कि इस फिगर नूं अगर तुसी तुहाडे हत्थ नाल बनाउणा चाहो तो मिनीमम तुहानूं कितनियां लाइनां खिंचणियां पैणगियां, स्ट्रेट लाइनां सीधियां लाइनां तुहानूं कितनियां खिंचणियां पैणगियां, ये पूछ रहे जी क्वेश्चन। तुसीं इसनूं खुद हुण ही अपनी कापी के उपर बना के देख सकते हो कि मिनीमम तुहानूं कितनियां लाइनां लाउण दी लोड़ पएगी इस तरह की फिगर नूं बनाउण लई। ठीक है जी, सो मैं तुहानूं सिंपल बना के दिखाउणा। देखो सब तो पहला तो असीं एक बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं सब तो पहला। फिर एक लाइन उसने इस तरीके ਨਾਲ लगाई है, तो बॉक्स लाइनां यूज हुई 4, 5वीं एक आ होगी 5। फिर उसने एक यूज की है ये और एक यूज की है ये, इस तरीके नाल, सॉरी उसने जो डायग्राम मेरे ने थोड़े जी ड्राइंग मेरी, सो 2 उसने डायग्राम यूज किए। ठीक है जी, हुण उसने जो डायग्राम चीज़ बची वो 2 ऐड हो गई
और बाद विच एक आ है और एक आ ऐड हुई है, यानी कि 2 होर ऐड हुई। प्रॉपर डायग्राम कंप्लीट हो गया। 4 और 1 5 2 7 2 9 और 2 11 लाइन्स च तुहाडा सारा कंप्लीट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी जिहड़ी है वो इहदा आंसर होएगी, नन ऑफ दीज। हालांकि पेपर दे विच जो ऑप्शन सी 12 आई सी, सो और बाद दे विच करैक्ट हो गई सी। सो तुहाडी आंसर की हिस्ट्री का ऑप्शन नंबर ए दिता होया 12, बट आंसर एक्चुअली डी है, नन ऑफ दिस, क्योंकि 11 आ रही हैं जी। क्लीयर है जी। नैक्सट च उसने की किया, नैक्सट च वो कर रहे ने कुछ इस तरीके का काम। ये चीज है जी, और वो पूछ रहे हैं वाटर इमेज क्यों होगी। देखो वाटर इमेज नीचे दिखती है, पानी है ना, पानी दे विच इमेज दिखेगी, यानी कि इमेज असी इत्थे देखना है, यानी कि इत्थे शीशा लगे है एक तरह का, पानी इमेज इदा दिखनी है। सो इमेज किस तरह दिखेगी, पहला तो ये देखो डब्बा तो इस तरीके दिखेगा, आ लाइन भी एवं दिखेगी पानी च, ये भी इस तरीके दिखेगा, पर जो ये बनेगा सो ये ओ पहला दिखेगा और ये वाली आ लाइन पहला दिखेगी, तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा। सो ये तुहानू जो दिख रहा है ये ऑप्शन ए दे विच ही दिख रहा है, ऑप्शन ए। उसमें वाटर इमेज पूछी सी, अगर वो मिरर इमेज पूछता है या तो वो इधर बननी सी या फिर इधर, और मिरर इमेज हमेशा बना के भेज दे कि किस पासे देखनी है। वाटर इमेज कही सी सो नीचे ही देखनी पएगी सानू, क्योंकि वाटर इमेज है। क्लीयर है जी। बड़ा ईजी क्वेश्चन सीगा साडे कोल और बड़ा सिंपल क्वेश्चन सीगा। उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा। सो ये अपनी रीजनिंग जिहड़ी है चल रही है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है डाइस। डाइस का बड़ा मजेदार, बड़ी मजेदार जी ट्रिक दसन लग्या मैं डाइस के उत्ते। डाइस उसने बनाई है, अब पता नहीं जी किस तरीके बनाते डाइस नूं मेरे। 1 3 और इत्थे लिखता होने 2, फिर हैगा जी 3 1 और 5 है ना, एक डाइस ये बना ली, और बाद में है 4 2 और 3। सो इस तरीके जिहड़ा है उसने लगा लिया। वो कहते जी डाइस में जो असीं सिट रहे थे ना 3 वारी सिट्टिया और एवें एवें उन्होंने फोटोआं आईयां। सो ये फोटोज चो तुसीं देख के दसना है कि जी 3 दे उल्टे पासे की आया होएगा, उस डाइस जिहड़ी डाइस में सिट रहे 3 दे उल्टे पासे की होएगा, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली वो। देखो मैं तो सिंपल चीज़ तुहानूं दस देना, अगर 2 फोटोआं च कोई एक नंबर जो कॉमन हुंदा है या 2 डाइस च कोई 2 नंबर कॉमन हुंदे, सो किवें ट्रिक लगदी है। सो इत्थे 1 और 3 और 2 है, 1 3 और 5 है, यानी कि इन्हां विच 2 नंबर कॉमन ने, 1 और 3। सो जिहड़ा तीसरा नंबर कॉमन नहीं हुंदा ना, वो दोनों एक दूजे के ओपोजिट हुंदे, यानी कि 2 और 5 एक दूजे के ओपोजिट होणगे, ये कन्फर्म है। क्लीयर है जी। यानी कि इत्थों तो सानूं कुछ पता ही नहीं चलिया, क्योंकि उसने 3 दे उल्ट पूछा, बट सानूं तो इत्थों ही पता चलिया कि 2 दे उल्ट 5 है, मतलब 2 दे दूसरे पासे 5 होएगा डाइस जी। ठीक है जी। हुण इत्थे कॉमन देखो किन्ने हैगे ने, 1 5 3 2 4 और 3, इत्थे 3 ही कॉमन है। ठीक है जी। हुण इत्थे ट्रिक की लगदी है, तुसीं घड़ी दी सूई वांगू एवें चल पैना है, घड़ी दी सूई वांगू। तो असीं की करना, 3 तो बाद की लिखांगे 5 तो बाद की लिखांगे 1। ये वाला बॉक्स कंप्लीट हो गया। इत्थे आओ, इत्थे 3 लिखा होया, एवें चलो घड़ी दी सूई वांगू, 3 फिर आ जाएगा 2 फिर आ जाएगा 4। सो इस तरीके नाल एक दूजे दे उल्ट उल्ट लगे हुंदे ने, यानी कि 2 दे पासे 5 है, उस दूसरे पासे 1 दे दूजे पासे 4 है। हुण इत्थे 3 है ना, सो इत्थे हुण 3 की जगह 6 कर लो, तो 3 की जगह 6, क्योंकि 1 ही बचा है, उनकी जगह तो वही आ जाएगा। तो 3 के उल्टे पासे जो है वो 6 होएगा। सो एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक होंदी है ये डाइस के लिए, बड़े आराम नाल एक क्वेश्चन जिहड़ा इहदे नाल हल हो जाता है डाइस का। बड़ा सौखा जिहा क्वेश्चन होंदा जी डाइस का। ठीक है जी। उम्मीद है तुहाडे तो क्वेश्चन जिहड़ा हो गया होएगा। अपना रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, इस तो बाद अपना मैथ का पार्ट होएगा। सो लास्ट क्वेश्चन साडी रीजनिंग का स्पैशली। सो कहते जी एक वॉच है, शॉर्ट 5 मिनट्स पास्ट 3 o'clock ऑन संडे इवनिंग। देखो जी सब तो पहली चीज संडे है ते 3 बजे ने, ठीक है जी, और पास्ट हुंदा है पहला, है ना। वो कहते हैं कि वॉच शोड 3 मिनट पास्ट और 3 o'clock ऑन संडे इवनिंग। ठीक है जी। वैन करैक्ट टाइम वॉज 3 o'clock। अच्छा 5 मिनट बाद च दिखा रही है, यानी कि वो कहते हैं जी एक घड़ी है जी टाइम दिखा रही है 3:05 का, और वजे एक्चुअल च 3 सीगे संडे नूं। फिर जी इट लॉसेज यूनिफॉर्मली एंड वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 10 मिनट स्लो ऑन द सबसीक्वेंट ट्यूसडे 9 PM। फिर वो कहते जी ट्यूसडे, फिर वो गल करते हैं ट्यूसडे नूं
9 PM ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 3 ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 PM, यानी कि 9 PM तो कहते 10 मिनट स्लो चल रही है, यानी कि टाइम दिखाती है वो 8:50 का। क्लीयर है जी। मतलब संडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ 3:05। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ 8:50। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 3 ਔਰ 9 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੇ ਦੇ 3 ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ, और 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣੇ ਜੀ 54 ਘੰਟੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 3:05 ਔਰ 8:50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫਰਕ ਉਹੀ 54 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 54 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ 54 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੜੀ ਹੋਰ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਗੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 0 ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੀ? 10 ਔਰ 5 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1:2 ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। 1:2 ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 54 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1:2 ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ? 18:36 18:36 ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 54 ਵੀ ਜੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੰਡੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 54 ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1:2 ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 3 ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 18 ਘੰਟੇ ਜੋੜਨੇ ਹੈ। 3 PM ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ 12 ਘੰਟੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 AM ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸੋ 9 AM ਹੋ ਗਏ ਮॉर्निंग ਦੇ, ਉਹ ਵੀ मंडे सुबह 9 बजे उसने सही टाइम दिखाया होगा कि 9 ही बजे से सुबह और 9 ही उन्हें दिखाया टाइम। ठीक है जी। सो ऑप्शन में दस देना इतने ऑप्शन केड़ी है, ऑप्शन है जी डी ऑप्शन है, जिस दे विच उन्हें मंडे नूं बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम दिखाया होएगा स्पैसिफिक इहदे लई। ठीक है जी। उम्मीद है तुहानूं सारा समझ आया होगा। जेकर कुछ समझ नहीं आया सो तुसीं जरूर पिछे रिवाइंड करके इस सारे नूं देख सकते हो, हर एक चीज़ नूं। ठीक है जी। हर एक चीज़ जी तुसीं इहदे विच देख सकते हो, और बड़े अच्छे तरीके नाल, बड़े अच्छे मैथड्स नाल, बिल्कुल कॉन्सैप्चुअली असीं चीज़ां कीतियां। किसी भी चीज़ दे विच कोई फॉर्मूले नूं ज़्यादा यूज़ करन दी ट्राई नहीं कीती। जरनल वे नाल, जरनल तरीके नाल तुहानूं चीज़ां सिखाउण दी ट्राई कीती है। इत्थे बहुत सारे ट्रिक्स लग सकदियां ने, बट असीं कुछ नहीं यूज़ कीता। असीं इन जनरल असीं किवें सोच सकदे हां, किवें साडा माइंड इन जनरली तर्क करदा है, हर एक क्वेश्चन ते मैं उस तर्क दी गल ही कीती है, एक डाइस दे क्वेश्चन दी ट्रिक नूं छड्ड के। सो उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा। जे समझ आया जरूर चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वध तो वध लाइक करो। नैक्सट वीडियो मैथ पोर्शन के लिए आएगी, तुसीं जरूर उस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखो। सो नैक्सट वीडियो मिलते हैं पंजाब पटवारी 2016 के मैथ पोर्शन को सोल्व करांगे उत्थे। उदों तक जुड़े रहो, वीडियो को शेयर करो, वध तो वध लाइक करो, फैला दो वीडियो को। सो जे चंगा लगे जरूर कमेंट करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।